Hello students, today we will discuss about velocity in chapter 3 kinematics. That is the next topic of the topic we have done in the last class. In the last class we have completed about distance, displacement, speed and average speed in detail with numericals with examples. Average speed को हमने डिटेल में पढ़ा था with examples, numericals and shortcut भी पढ़ा था जल्दी कैसे निकालें. Same, let us continue. After speed is velocity. Velocity is defined as the rate of displacement covered, which is displacement upon time. Displacement is x, but time is t. In some books, displacement can be represented by s, x or s. Displacement upon time. What is its SI unit? SI unit क्या होगी? मीटर पर सेकंड. डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकंड में. velocity may be positive or may be negative. Speed always positive, but velocity may be positive, may be negative. Types of velocity. Velocity कितने type की होगी? Same as that of speed. Velocity is also same four types. One is uniform velocity. Second is non-uniform velocity. Third one is average velocity. And fourth one is instantaneous instantaneous velocity. That's uniform means velocity is constant, change नहीं हो रही है. Any formula will remain same, displacement upon time. Non-uniform velocity means velocity is changing, continuously change हो रही है, increase और decrease. Variable है, change हो रही है, उससे हम समझ सकते हैं, interpret कर सकते हैं, but calculate करने का कोई formula नहीं होता. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां कहीं भी होगी, मतलब चेंज जहां भी होगी वेलोसिटी, वहां पे हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा आइदर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time taken. Total displacement upon total time taken. And instantaneous velocity is dx by dt, known as differentiation of distance x with respect to time. डिफरेंशिएशन क्या होता है ये डिटेल में हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ूंगा. सीक्वेंस में चलेंगे, जहां उसकी नीड होगी वहीं इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद ही मैं इसको पढ़ूंगा. पहले समझेंगे फिर इसको हम समझेंगे, इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे. दैट इज सो. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी. Average velocity is total displacement upon total time taken. Let's deal with an example. Example की बात करते हैं. Average velocity. Let a particle moves from A to B with 40 meter per second and returns back to A with 60 meter per second. A to B 40 and B to A returns back with 60 meter per second. What is the average velocity? मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया होगा. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर्मूला इज
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब कभी सॉल्व करें फॉर्मूला जरूर ये क्वेश्चन हमने एवरेज स्पीड में भी पढ़ा था। एवरेज स्पीड में इसी का आंसर था 48 मीटर पर सेकंड, मैंने सॉल्व कराया। बट एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। Particle moves from A to B and returns back to A. Initial position A, final position A. So displacement becomes zero. So zero divided by everything is zero. Zero divided by. That is the example related to average velocity. इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, एग्जाम्स में भी कई बार आता है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम होम टू मार्केट, होम टू मार्केट 2.5 kilometer away, moves with the speed of 5 kilometer per hour. Home to market distance 2.5 kilometer. Person, a man moves with 5 kilometer per hour from home to market, finding the market closed. तुरंत वापस मुड़ा and comes back to home with 7.5 kilometer per hour. तुरंत वापस आया 7.5 kilometer per hour. Question is, find the average speed and average velocity, average speed and average velocity in 0 to 30 minutes. 0 to 30 मिनट में average speed and average velocity। इसके लिए हमें पता हो करना पड़ेगा 30 मिनट में यहाँ से चलने के बाद कहाँ पहुंचेगा। For that we will calculate कि यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। So time taken from home to market is let t1. Time is the distance upon speed. यहाँ तक जाने का डिस्टेंस कवर्ड 2.5 किलोमीटर, कितनी स्पीड के साथ 5, पॉइंट हटा दे 50, कितना आ गया 1/2 आर, हाफ एन आवर। मींस होम टू मार्केट जाने का जो टाइम है वो है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। और 30 मिनट में ये कैलकुलेट करना है। 30 मिनट में यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गए, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 30 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2.5 किलोमीटर, बट टोटल टाइम टेकन इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आर में लेके चलेंगे, आर में कितना होगा 1/2 आर। सो 2.5 by 1 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 5.0 means 5 kilometer per hour is the answer. Similarly, average velocity straight line है, displacement covered कितना है c 2.5 by कितना टाइम टेकन 30 minutes, यानी 1/2 r. So answer is same 5 kilometer per hour. That is, hope you understand. In the second part, it is asked that 0 to 50 minutes में 0 to 50 minutes में एवरेज स्पीड क्या होगी, 0 to 50 मिनट में what is the average speed and average velocity। सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट 50 मिनट में कहाँ होगा, उसके लिए हम वापस आने का टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम टेकन टू कम बैक इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड 2.5 किलोमीटर विद व्हाट स्पीड 7.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 25 is the 1/3 r, 1/3 r means 20 minutes, यानी वापस आने का टाइम टेकन है
20 मिनट्स। टोटल टाइम कितना हो गया 50 मिनट। तो 50 मिनट्स ने हमसे पूछा, यानी यहाँ से चला 30 मिनट में यहाँ पहुंच गया, 20 मिनट में वापस आ गया। टोटल टाइम इज 50 मिनट्स में क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट। टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। यहां से वापस आने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 50 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा 50 अपॉन 60। 0 से 0 कट जाएगा। दिस बिकम्स 5 by 5 into 6 ऊपर आ जाएगा। कैंसल। The answer is 6 kilometer per hour. What is Abhina's velocity? I'm expecting कि बिना लिखे हम आंसर। Why 0? Because यहाँ से चला 50 मिनट बाद यहीं आ गया। Displacement is 0. Total displacement upon total time is average velocity. Displacement 0. Third part is 0 to 40 minutes में एवरेज स्पीड क्या होगी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हम सबको ट्राई करना चाहिए। ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई दिस वन। अब शायद सॉल्व हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम्स में, लाइक नीट में, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में कई बार एज इट इज वही क्वेश्चन कई बार। सो इम्पोर्टेंट है। मेनली क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 11th क्लास में हमें ध्यान रखना है फॉर्मूले के रट्टे मारने पे नहीं ध्यान, हमें एफर्ट लगाना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करना है, इस पे टाइम कम स्पेंड करना है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे ये अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करोगे तो वो नहीं होगा, बट ये करोगे तो वो याद हो जाएगा। सो स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आज, thank you.